ڈالر کا ریکارڈ توڑ سپیل جاری ہے. روپے کی بے قدری کا آج ایک اور دن ہے. انٹر بینک میں ڈالر مزید ₹1.23 مہنگا ہو کر ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ₹193 کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر مزید مہنگا ہو چکا ہے. ادھر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار میں مثبت رجحان ہے. 100 انڈیکس میں 250 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے. مزید معلومات راجہ کامران سے ہم جانیں گے. جی راجہ کامران. دیکھیں پاکستان میں اس وقت جو ہے روپے کی قدر تیزی سے گر رہی ہے اور اس کی وجوہات صاف ظاہر ہیں کہ کیونکہ پاکستان میں زر مبادلہ ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں اور پاکستان کو مئی اور جون کے دوران جو ہے بڑے پیمانے پر بیرونی قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے جو تجارتی خسارہ ہے وہ بھی $40 ارب سے تجاوز کر چکا ہے. تو ان تمام صورتحال میں پاکستان میں جو ڈالر کی ارننگ ہے وہ کسی تو ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. ابھی تک پاکستان کو نہ IMF سے ڈالر سے ملنے کی امید ہوئی ہے نہ ہی جو دوست ممالک ہیں ان سے پاکستان کو کوئی پیکج ڈیل سائن ہوئی ہے. تو جو ڈالر کی فلائٹ ہے اس پر گزشتہ روز ہم نے بات کی تھی معروف تاجر سرکار کریم ڈیڈی سے. ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر جو ٹریول بین لگا دیا جائے. جو لگژری اور تفریحی مقامات پر لوگ جا رہے ہیں گھومنے پھرنے اس پر پابندی عائد کی جائے تاکہ ڈالرز کو بچایا جا سکے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا راجہ کامران. سمندر پار پاکستانیوں کی ترسیلات زر میں اضافہ. تاریخ میں پہلی مرتبہ ترسیلات $3 ارب سے تجاوز کر گئیں. اسٹیٹ بینک کے مطابق اپریل میں سمندر پار پاکستانیوں نے $3 ارب 10 کروڑ کی ترسیلات کی ہیں, جو گزشتہ سال اپریل سے 11% زائد ہے. مالی سال کے دوران مجموعی ترسیلات زر $26 ارب 10 کروڑ موصول ہوئی. مالی سال میں جولائی 2021 سے اپریل 2022 کے دوران ترسیلات میں 7.6% کا اضافہ ہوا. کراچی میں گزشتہ رات صدر کے علاقے میں ہونے والے بم دھماکے سے متعلق اہم انکشافات ہوئے ہیں. بام ڈسپوزل اسکواڈ نے ابتدائی رپورٹ تیار کی ہے. دھماکہ سائیکل میں ہوا. پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ دھماکہ خیز مواد کچرا اٹھانے والی مبینہ افغانی باشندے کی سائیکل میں نصب کیا گیا تھا. دھماکے کی جگہ سے کچرا اٹھانے والا لڑکا بھی غائب ہے. اس سلسلے میں PDS حکام کا کہنا ہے کہ ماضی میں اس نوعیت کے 2 دھماکے کیے گئے. ایک دھماکہ شیریں جناح کالونی اور دوسرا ماڑی پور روڈ پر کیا گیا. بعض تفتیش کاروں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ دھماکہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے شفقت عزیز سے. شفقت, کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل, بم ڈسپوزل اسکواڈ نے صدر دھماکے کی ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ تیار کر لی ہے. اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دھماکہ جو ہے وہ کچرا اٹھانے والی سائیکل میں ہوا, جو مبینہ طور پر ایک افغانی جو ہے وہ لڑکی کی بتائی جا رہی ہے اور بتایا بھی جا رہا ہے کہ دھماکے کی جگہ سے کچرا اٹھانے والا لڑکا بھی غائب ہے. BD رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دھماکے میں 2 کلو بارودی مواد اور آدھا کلو سے زائد بال بیرنگ جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں, جبکہ کچھ تفتیشی ٹیموں کا کہنا ہے کہ جو دھماکہ ہے وہ ٹائم ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا. ماضی میں قسم کے 2 دھماکے بھی کراچی شہر میں کیے گئے, جن سے ایک دھماکہ جو ہے وہ شیریں جناح کالونی جبکہ دوسرا ماڑی پور روڈ پر بھی کیا گیا. تاہم چند تفتیش کاروں کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ یہ دھماکہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس سے کیا گیا ہے. تو آج دوبارہ جو ہے تفتیشی حکام جو ہے وہ دھماکے کا دورہ کریں گے اور حتمی رپورٹ جو ہے آج پھر ترتیب دی جائے گی. جی بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے پرعزم ہے. صدر دھماکے میں 1 شخص جاں بحق 10 زخمی ہوئے. دہشت گردی کو دوبارہ سر اٹھانے نہیں دیں گے, ہر صورت خاتمہ کریں گے. کراچی کی بہتری کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. رات کو تقریباً 11 بجے ہمیں یہ پتہ چلا اس دہشت گردی کے واقعے میں ایک ہمارا بچہ 24 سال کا تھا عمر, جو کہ خود جناح اسپتال میں ایک ٹیکنیشین کا کورس کر رہا تھا, وہ شہید ہوا. 10 لوگ اور انجر ہوئے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ان 10 میں سے 8 تو رات کو ہی ڈسچارج کر دیے گئے تھے, 2 ایڈمٹڈ تھے, ایک کا رات کو ہی اس کو آپریٹ کیا اور میری صبح پھر ڈاکٹر یہ کلیم کر دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ جی. گوجرانوالہ میں تیز رفتار ڈمپر نے 2 مسافر وینز کو کچل ڈالا. خواتین اور بچوں سمیت 12 افراد جاں بحق, 8 زخمی.
मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म है। मैदानी इलाके हीट वेव के ज़ेर असर हैं। लाहौर में दर्जा हरारत 43, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। सिंध में मिट्टी और नवाबशाह में 47, दादो मोहिंजोदाड़ो में दर्जा हरारत 48 डिग्री तक जाने की तवक्को है। बलूचिस्तान में गर्मी हदों को छू रही है। सिब्बी में पारा 45 डिग्री से 50 डिग्री तक जाने की पेशगोई है। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी है। सिंध और पंजाब के कई शहरों में गुज़श्ता रोज दर्जा हरारत 47 डिग्री तक गया। हीट वेव का खदशा बरकरार है। तिबी माहिरीन ने कहा है कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। मज़ीद हम जानेंगे मोहसिन अलवी से। बिल्कुल, मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों शहरों में गुज़िश्ता रोज़ दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया था। लाहौर के अंदर भी शदीद गर्मी है। सुबह से सूरज आंखें दिखा रहा है और आने वाले दिनों के अंदर महकमे मौसमियात के मुताबिक मौसम की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आमदोरफ्त में ख़ास तौर पर जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कारोबारी ज़िंदगी शदीद गर्मी की वजह से मुतासिर हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें। आने वाले दिनों में हीट वेव का खदशा भी बरकरार है और महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर जा सकता है। जिस अंदाज से गर्मी पड़ रही है इसमें शहरियों को ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ लोड शेडिंग ने आम शहरियों की ज़िंदगी में मुश्किलात में और ज़्यादा इजाफा कर दिया है। आने वाले दिनों में महकमा मौसमियात के मुताबिक जो गर्म हवाएं चल रही हैं वो भी गर्म है, लेकिन चंद दिनों के बाद मुमकिन है कि मौसम में कोई तब्दीली आई। लेकिन फ़िलहाल गर्मी जो है उसका राज बरकरार रहेगा। सूरज ऐसे ही आंखें दिखाएगा, पारा जो है और ज़्यादा बढ़ने का इम्कान है। जी, और सिर्फ यही नहीं, मुल्क में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे और देहात में 12 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी है। बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 4743 मेगावाट है। बिजली की पैदावार 20,757 मेगावाट है। तलब 25,500 मेगावाट है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स 821 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। निजी शोबे के बिजली घरों की पैदावार 11,717 मेगावाट है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे रियाज थीम से। रियाज, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त मुल्क भर में जो बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग की जा रही है, क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि सिफर लोड शेडिंग है और मुल्क के किसी कोने में बिजली की लोड शेडिंग नहीं की जा रही। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज जो है, ज़मीनी हकायक इसके बिल्कुल बरक्स हैं। देही और शहरी इलाकों में जो इतलात आ रही है उसमें 6 से 8 और 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। और इसके अलावा जो हमें डाटा जो ज़राए की जानब से मौसूल हुआ है उसके मुताबिक इस वक्त गर्मियों में जो बिजली का शॉर्टफॉल है वो 4,743 मेगावाट के लगभग पहुंच चुका है। बिजली की पैदावार 20,757 मेगावाट, तलब 25,500 मेगावाट है। इसी तरह जो सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स है वो 821 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। निजी शोबे की बिजली घरों की पैदावार 11,717 मेगावाट के लगभग है। विंड पावर प्लांट्स 535, जबकि सोलर पावर प्लांट्स 114 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। इसी तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और बहुत शुक्रिया रियाज थीम आपका। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ पेशावर में बिजली लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ चुका है। शहरी इलाकों में 7 से 9, जबकि मज़ाफ़ात में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 से 18 घंटे है। बिजली की तवील बंदिश की वजह से जिला भर में मामूलाती ज़िंदगी और कारोबारी सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर हैं। हालात क्या हैं, जमील खान से हम जानेंगे। जी बिल्कुल, पेशावर में गर्मी बढ़ती जा रही है, मौसम गर्म होता जा रहा है, ताहम साथ साथ बिजली भी गायब होती जा रही है, जिसकी वजह से अवाम इंतहाई परेशानी का शिकार है। ये भी जानते हैं कि उनकी मुश्किलात कितनी है बिजली से। तकरीबन 1 घंटा बिजली होती है और 1 घंटा नहीं होती है। तकरीबन वो 1 घंटे में भी 10-12 दफ़ा चली जाती है। पूरी रात नींद नहीं करते। पूरी रात को तकरीबन 2 घंटे बिजली आई है और दिन में भी वो होता है, ना घर में पानी है, कोई चीज़ भी नहीं है। पेशावर के अवाम परेशान है लोड शेडिंग से। कहते हैं कि हुकूमत जो वादे करती है इसको अमली शक्ल ले ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सके, क्योंकि वो इलाके जहाँ पे 100% रिकवरी है बिलों की मद, उधर भी बिजली की सूरत हाल अबतर है, तो जिसकी वजह से शहरी इंतहाई परेशानी का शिकार है। जी, लाहौर में भी लोड शेडिंग से शहरी परेशान है। कहते हैं बिजली की बंदिश से पानी भी मैसर नहीं, कारोबार भी ठप होकर रह गया है। उन्होंने हुकूमत से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल वहाब शाहिद से।
جی بالکل، بجلی کی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ نے عوام کو پریشان کر دیا ہے۔ غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ سے نہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی جو ہے وہ اس وقت بلبلا اٹھے ہیں، چونکہ بجلی نہ آنے کی وجہ سے پانی کی بھی پریشانی جو ہے وہ لاحق ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو یہ اس وقت میں مدینہ کالونی کے علاقے میں موجود ہوں اور یہاں پر بھی جو ہے وہ انتہائی پریشانی ہے۔ لوڈ شیڈنگ ہونے سے جو ہے وہ کاروبار بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ یہاں پر علاقہ مکین ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت لوڈ شیڈنگ ہے، اتنی نہیں ہونی چاہیے۔ گھروں میں نہ بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہی بیمار ہیں جس گھر میں، ان کے لیے بھی بہت پریشانیاں ہیں۔ کاروبار بالکل نہیں ہے اس کی وجہ سے۔ جب آتی ہے 2 گھنٹے جاتی ہے، 1 گھنٹہ آتی ہے، پھر 2 گھنٹے جاتی ہے، یہ روٹین ہے بجلی کی یہاں کی۔ بالکل، یہ جو ہے وہ بجلی نہ آنے کی وجہ سے جو ہے وہ گرمی میں باہر نکلنا مجبوری بن جاتی ہے لوگوں کی، اور لوگ یہاں پر جو ہے وہ پریشان ہیں۔ غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ نے جو ہے وہ جہاں کاروبار متاثر کیا، وہاں پر گھروں کا سکون بھی چھین لیا گیا ہے۔ جی، کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 6 سے 7 گھنٹے تک پہنچ چکا ہے۔ بجلی کی بندش کی وجہ سے معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں۔ کوئٹہ میں کیا صورتحال ہے، محمد خان کاکڑ سے ہم جانیں گے۔ کل بلوچستان کے اکثر اضلاع میں گرمی کی شدت میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ بلوچستان میں جو سب سے زیادہ درجہ حرارت سندھی میں ریکارڈ کیا گیا جو کہ 47 سینٹی گریڈ ہے، جبکہ کوئٹہ میں 38 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند ہفتوں میں جو ہے گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ تاہم گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے اکثر اضلاع میں جو ہے بجلی غائب ہو گئی۔ اس وقت کوئٹہ شہر کے اندر جو ہے 6 سے 7 گھنٹے کا لوڈ شیڈنگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، تاکہ دیہاتی علاقوں میں جو 15 سے 16 گھنٹے کا جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ جاری ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ساتھ بجلی غائب ہو گئی۔ تاہم ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت جو ہے گرمی کے اس موسم میں بجلی کی جو فراہمی اس کو یقینی بنائے، تاکہ عوام کو جو گرمی میں بجلی کی سہولیت مل سکے۔ اس وقت بھی کوئٹہ کے اکثر علاقوں میں بجلی جو ہے شارٹ ہے، تقریباً 9 سے 10 گھنٹے جو ہے یہاں پر بجلی عوام کو نہیں مل رہی۔ تاہم مطالبہ کیا کہ حکومت بجلی کی فراہمی کو یقینی بنائے تاکہ گرمی کے موسم میں عوام کو جو ہے بجلی مل سکے۔ جی، ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم نہ ہو سکا۔ شہری علاقوں میں لوڈ شیڈنگ سے گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ کاروباری افراد کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہری کہتے ہیں گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی لوڈ شیڈنگ نے جینا محال کر دیا ہے۔ بجلی گئی ہے اور رات کو 11:15 بجے آئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وابڈا کے دفتر جاؤ، کہتے ہیں ہم کیا کیسے، اوپر سے آرڈر ہے۔ حکومت سے گزارش ہے یہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے۔ لوڈ شیڈنگ نے تو جینا مشکل کر دیا ہے۔ یہ میٹرک کے سالانہ امتحانات ہو رہے ہیں اور لوڈ شیڈنگ کا جو عروج ہے اور جو لوڈ شیڈنگ اپنے عروج پر ہے۔ لائٹ آئے تو پانی بھریں اور بچے نہائیں، ان کا منہ دھوئیں، وہ اسکول جائیں۔ اور بھی لوڈ شیڈنگ کے اتنے مسئلے ہیں، جب بھی کوئی کام کرنے کا ٹائم آتا ہے لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، اسکول کالج میں۔ بجلی کمزور بھی ہے، کم بھی آتا ہے، پھر بجلی کوئی چیز پتہ نہیں چلتا ہے کدھر غائب ہو گیا۔ 2 گھنٹہ ہے، 2 گھنٹہ نہیں ہے، پھر 2 گھنٹہ بھی آتا ہے، پھر 2 گھنٹہ بھی نہیں ہے۔ متاثر ہو رہی ہے، زندگی بہت متاثر ہے، بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ جو گرمی آتا ہے بجلی نہیں ہوتا ہے، جب سردی آتا ہے تو پھر گیس نہیں ہوتا ہے۔ بجلی کی اتنا لوڈ شیڈنگ ہے بالکل ہے نہیں، ہم لوگ مکی سے بھی تنگ ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ بجلی ہونی چاہیے یہاں پر ہے جی، بجلی کی بڑی قلت ہے۔ ایک دن آتی ہے، 2 گھنٹے بعد جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر جاتی ہے، بچے پریشان۔ بجلی سے تو سارے جانتے ہیں کہ پریشانی جیڑی ہے، لیکن مطلب بجلی سے تو پچھوں وہ خرید کہتے ہیں جو کہ ٹی وی سے تسی لوگ دستے ہے کہ پچھا انہیں جس طرح بھی ہے انہوں نے کوئی مال ہی نہیں خریدیا کہ جس کی وجہ نال کوئی جو پیچھے بجلی۔ براہ راست آپ کو لے چلیں گے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہم کمزور تکالیف کے ساتھ لوگوں کی تکالیف اٹھا کے چلتے ہیں اور ہماری زندگیاں بڑی سخت ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس پہ فخر ہے۔ وہ کہ چاندنی خدہ ہیں اپنے حجرہ مہتاب پر، اور میں نازاں ہوں اس پر، میرا گھر مٹی کا ہے۔ تو ہم اس مٹی کی نسل ہیں، اس مٹی سے ہیں، اور اس مٹی سے بسنے والوں کی خدمت کرنے والے یہ کالے کوٹ والے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ ہمارا جو خدمت کا مشن ہے، عوام کی خدمت کا مشن، وہ جاری و ساری رہے گا۔ آج جب میں اپنے اس گھر میں آ رہا تھا تو میرے سٹاف نے پوچھا کہ سر وہ وائرلیس پہ میرے جو پرسنل اسسٹنٹ صاحب تھے، سر وہ کس یہ۔ اور اب نیوز اپڈیٹس۔
फराह खान और एहसन जमील गुज्जर के खिलाफ आमदन से जायद असासों की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। फराह खान और शोहर एहसन जमील गुज्जर के खिलाफ मुख्तलिफ इदारों से जवाब मौसूल होना शुरू हो गए हैं। नैब लाहौर ने मुख्तलिफ इदारों को 100 से जायद खतूत इरसाल किए। फराह खान और एहसन जमील की मुबैना कंपनीज का रिकॉर्ड SECP ने जमा करवा दिया है। तफसीलात भी जानेंगे, आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि फराह खान और एहसन जमील गुज्जर के खिलाफ आमदन से जायद असासों की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। फराह खान और शौहर एहसन जमील गुज्जर के खिलाफ मुख्तलिफ इदारों से जवाब मौसूल होना शुरू हो गए हैं। नैब लाहौर ने मुख्तलिफ इदारों को 100 से जायद खतूत इरसाल किए हैं अब तक, और फराह खान और एहसन जमील की मुबैना कंपनीज का रिकॉर्ड भी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जमा करवा दिया है। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ का कहना है कि इमरान खान ने पाकिस्तान में खाना जंगी शुरू कर रखी है, हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं। 2018 से अब तक इलेक्शंस रूल्स में जो तरमीम कर चुके, अगर उन्हें वापस ले लिया जाए तो इलेक्शन कराने को तैयार हैं। फराह बीबी का ताना बाना बुशरा बीबी और बुशरा बीबी का इमरान खान से मिलता है, जिसकी तहकीकात की जा रही हैं। 4 साल का फैलाया हुआ गंद पाकिस्तान की दिफा के लिए हमने अपने कंधों पर उठाया हुआ है। इलेक्शन से भागने वाले लोग नहीं हैं, हम सुबह इलेक्शन करवाना चाहते हैं, मगर जो 2018 से अब तक इलेक्शन रूल्स में जो तरमीम कर चुके हो, आओ बैठो, 1 घंटे में वो वापस लेते हैं। अगर आप ये समझो कि फराह बीबी का ताना बाना बुशरा बीबी से और बुशरा बीबी का तुम्हारे साथ जो कनेक्शन है उसकी इन्वेस्टिगेशन रुक जाए तो ये नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ आज मर्दान में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करिए। जलसे के लिए रेलवे ग्राउंड मर्दान में जलसे के लिए पंडाल सजाया गया है, स्टेज तैयार है। जलसे से इमरान खान और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां कैसी हैं और पंडाल में इस वक्त क्या सूरत हाल है, बताएंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद खान। जी शाहिद, बताइएगा। आज कप्तान जो है मर्दान खैबर पख्तूनख्वा के मर्दान शहर में अपने पावर का मुजाहरा करेंगे, यहाँ पर कारकुनान से खिताब करेंगे। इस वक्त देखा जाए तो शदीद गर्मी है, गर्मी की वजह से जो सड़कें है वो भी काफ़ी, उसमें रश भी कम देखने को मिल रहा है, लेकिन जो जलसगाह है यहाँ पर तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल है। स्टेज भी तैयार किया गया है, कुर्सियाँ भी जो है वो भी बिछाई गई हैं। कारकुनान की कुछ लोग कारकुनान जो है वो अभी से जो है जलसगाह में मौजूद है, गो कि जो जलसा है वो 6 बजे के बाद शुरू होगा। इस वक्त भी एक कारकुन हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। सर, हमें इतनी खुशी महसूस हो रही है कि खान हमें न गर्मी की परवाह है, न सर्दी की परवाह है, न बारिश की परवाह है, न तूफान की परवाह है। हमें सिर्फ खान देखने के लिए मैं वहाँ पे खड़ा रहूंगा, अपने खान का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद खान। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सामान न मिलने पर उमरा ज़ायरीन का एहतजाज। उमरा ज़ायरीन की बड़ी तादाद गैर मुल्की एयरलाइन की प्रवास SV 722 पर जद्दा से इस्लामाबाद पहुंची। 2 घंटे गुजर जाने के बावजूद मुसाफिरों का सामान कन्वेयर बेल्ट पर न डाला जा सका। मुसाफिरों का पारा हाई हो चुका है, उन्होंने एहतजाज किया, नारेबाजी की। मुसाफिरों के एहतजाज पर ASF को तलब कर लिया गया है। मजीद हम जानेंगे खालिद चौधरी से। खालिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, गैर मुल्की प्रवास से जो है जद्दा से उमरा ज़ायरीन इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे थे और देखते देखते तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद वक्त अब तक गुजर चुका है, जिसके बायस मुसाफिरों ने एहतजाज शुरू कर दिया और नारेबाजी की और उन्होंने जो है इंतजामिया पर गफलत का इल्ज़ाम लगाया, जबकि कहा जा रहा है कि सामान के हवाले से अभी कोई वाज़ेह तौर पे बताया नहीं जा रहा था, जिसकी बिना पर मुसाफिरों ने जो है गुस्से का इजहार किया और नारेबाजी शुरू कर दी और ताहाल उन्हें सामान नहीं मिल सका। इंतजामिया अभी तक इस हवाले से कोई मौक़िफ़ नहीं, कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। बहुत शुक्रिया आपका खालिद। बहावलपुर के सहराए चोलिस्तान में खुश्क साली से सूरत हाल संगीन होने लगी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे अपने नुमाइंदे वजाहत बशीर से। वजाहत, कोई मदद नहीं पहुंची हुकूमत की जानिब से? हाँ जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज कमिश्नर बहावलपुर ने वहाँ पर दौरा किया था चोलिस्तान का, लेकिन अभी तक कोई मदद वहाँ तक नहीं पहुंची। बहावलपुर के सराय चोलिस्तान में सूरत हाल हर बदलते वक्त के साथ गंभीर होने लगी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पानी की अदम दस्तयाबी और खुराक की कमी के बायस मजीद 150 भेड़ें हलाक हो चुकी हैं। चोलिस्तानियों ने सहरा से नकल मकानी शुरू कर दी है। सहरा में डीप में चोलिस्तान में इमदादी टीमें ताहाल नहीं पहुँच सकी। डीप चोलिस्तान के पानी जखीरा करने के टोबाजात बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। सहराए बासी हुकूमती इमदाद मिलने के मुंतज़िर नजर आते हैं। गुज़िश्ता रोज
सहराई चोलिस्तान में। कमिश्नर बहावलपुर का दौरा भी सूरत हाल को बेहतर ना बना सका। सहराई चोलिस्तान में 1700 टोबाजात में से 50% टोबाजात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। डेरा बुगटी के इलाके पीर कोह में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। जिला इंतजामिया की जानिब से पानी के 22 बाउजर्स का ऐलान किया गया, लेकिन सिर्फ 12 बाउजर्स ही मुहैया किए जा सके हैं। मजीद हम जान लेते हैं, फैज़ बुगटी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फैज़। जी, इसलिए मैं मौजूद हूँ पीरको में, जहाँ पर पानी का शदीद बहरान है। लोग पानी पानी करके रोड के ऊपर जमा हैं। हर कदम के ऊपर हर 3-4 गली के लोग मौजूद हैं। हर जगह पे जो है पानी का मसला बना हुआ है। आज सुबह सिर्फ 3 भोजनों का बताया जा रहा है। लोग शदीद परेशान हैं। कहते हैं कि हमारे बच्चे छोटे छोटे जो प्यास की वजह से जो तड़प रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आज सुबह कितने भोजन यहाँ पर आए हैं। जी, हम यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह आप पीरको में एंटर हुए हैं तो आपने खुद माहौल देखा हुआ है। बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया था वो टैंकर्स तो आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम मिकदार में आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर के जो है ना बलूचिस्तान गवर्नमेंट में ने 1 करोड़ रुपया रिलीज़ किए हैं, ख़ास तौर पर हंगामी तौर पे। तो हम गुजारिश करते हैं डीसी साहब से कि इनकी तादाद को बढ़ाया जाए। कहते हैं पहले डायरिया की वजह से हम लोग मर रहे हैं, अब जो है प्यास और गर्मी की वजह से रोडों के ऊपर हम बैठे हैं। जब तक पानी नहीं मिलेगा तो यहीं हम लोग अब जो है अपना आखिरी सांस भी यही लेंगे। जी, अरे वक्त तो एक ब्रेक का। वेलकम बैक। लाहौर की अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ मरियम नवाज की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर पुलिस के साथ लड़ाई झगड़े और कार्य सरकार में मुदाखलत केस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया है। अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की आज की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए दोबारा तलब किया है। अदालत ने समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। अदालत ने आज कैप्टन रिटायर्ड सफदर को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर रखा था। सिंध हाई कोर्ट ने 7 शरीफ में बम धमाका केस के मुलजमान की सजा के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। अदालत ने दहशतगर्द नादिर अली और मुर्शद और फुरकान की सजा बरकरार रखने का हुक्म दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि मुलजमान के खिलाफ इंतहाई ठोस शवाहिद हैं। मासूम इंसान को कत्ल करने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अदालत ने 5 मफरूर मुलजमान की दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। 7 लाल शहबाज कलंदर के दरबार पर धमाके में 80 से ज्यादा अफराद शहीद और 120 से ज्यादा जख्मी हुए। गिरफ्तार मुलजमान ने इतराफ़ जुर्म किया था। जुर्म साबित होने पर ट्रायल कोर्ट ने दोनों मुलजिमान नादिर और फुरकान को 2020 में 80 मरतबा सजाए मौत का हुक्म सुनाया था। जिला गिजर के गांव बोबर में जेर तामीर पुल 5 साल गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल न हो सका। सैकड़ों अफराद की आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। कदीम ज़माने में तामीर होने वाला लकड़ी का पुल भी इंतहाई खस्ता है। मज़ीद जानेंगे गिजर में अपने नुमाइंदे आबिद हुसैन से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़िला गिज़र की तहसील पुनियाल के गांव बुबुर में मौजूद हूँ, जो ज़िला गिज़र का तीसरा सबसे बड़ा गांव है। इस वक्त यहाँ जो मंसूबे के ऊपर हम मौजूद है, ये आरसीसी ब्रिज है जो 2017 में इसकी तामीर शुरू की गई थी, लेकिन ताहाल ये मंसूबा ताख़ीर का शिकार है। इस वक्त मेरे साथ सदर गिज़र प्रेस क्लब याकूब आलम ताई मौजूद है। उनसे इस मंसूबे के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मेरा खुद ताल्लुक इस गाँव से है और 6000 की यहाँ इस गाँव की आबादी है। 2018 को ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। बदकिस्मती से एक ऐसे डल ठेकेदार को ये काम मिला है कि वो इस पुल पर काम बिल्कुल कम करते हैं। यहाँ पर उसकी जो ना हाज़िरी बिल्कुल ना होने के बराबर है। कोई 3 डिप्टी कमिश्नर गुजरे, इन्होंने इसको नोटिस भी जारी किए, इसके बावजूद भी इस ठेकेदार के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। तो मसला ये है कि ठेकेदार और महकमे की जो इस वक्त कमज़ोरी है या इनकी जो नाअहली है, उसका खमियाजा भुगत रहे हैं यहाँ की पब्लिक, यहाँ के स्कूल के बच्चे। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना है कि इस काम की रफ्तार को तेज़ किया जाए ताकि आवाम की मुश्किलात में कमी आ सके। जी, इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नया।